one cause of, I said that this anthropogenic factor is deforestation. Which one? Which one? Deforestation. Clear hai? Shall I remove this? Understood what is the meaning of debris flow, mud flow? The last 2 days I tried for, I said that taking coffee without sugar, but it was disastrous. So I used to take a sip and thereafter left. But today with little sugar. मैं इतना जानता हूँ कि सब बकवासबाजी है. मैं साइंस एंड टेक पढ़ाता हूँ, ये मुझे इतना तो पता है क्या है, तो इसके वजह से चलिए मज़ा आ रहा है आप लोगों को ना. लैंडस्लाइड थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. तो डिफॉरेस्टेशन, कैन आई से दैट ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है माउंटेनस रीजन में. यस और नॉट? ट्रांसपोर्टेशन. शैल आई रिमूव? So another anthropogenic factor after the deforestation would be if I said that यदि मैंने यहाँ पे रोड बना रहा हूँ, so I will cut the mountain like this. I will cut the mountain like this or not? So what will happen? What will happen? ध्यान से, then it will be, it is, you can be able to say that this is a very high chance to fall down. Yes or not? क्योंकि इसका आपने क्या है, shear force बढ़ा दिया, shear strength, shear force बढ़ गया, shear strength decrease हो गया. Yes or not? So it will be more, it is high chance to fall down. इसीलिए यहाँ पर कभी कभी आप देखेंगे तार लगा देते हैं, heavy wire, so that if it is anything falling, it should not come onto the road. Clear? So another one, it is, I said that development of transportation network in the mountainous region. First deforestation, second one I said the development of transportation network. Next one, development projects. Which one? हमारे यहाँ so many development plannings are there and projects which are running in the mountainous region. Clear? अभी भी इसका भी एक कारण आप क्या मैं बोलूँ, it is better to go to the Sikkim, it is better to go to the Arunachal Pradesh. There is a full of forest. यहाँ पे लोगों ने ख़त्म कर दिया है. So which are the two we have seen till now? Deforestation, transportation, development of. Next point we have to see, like I said that if there is, and I said that river valley, this is, I said mountainous region, and here the river is flowing, so we are, what I said, that making dams. Yes or not? We are making dams, and ये water वहाँ बढ़ता जाता है, लेकिन ये dam बनाने के लिए we have to do several blast. Yes or not? Several blast we have to do. And that blast will make it to thunder this mountainous region, and that will increase the shear force and decrease the shear strength. Yes or not? समझ में आ गया? Development projects. Development projects. So 3 things till now we have been able to see. और भी सुनना चाहेंगे आप? या सैचुरेट हो गए? Yes. Bad agriculture practice. Bad practice. Bad agriculture. देखो ऐसा कुछ होता है और कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं. यस, मतलब यहाँ पे दोनों टाइप का माउंटेन्स दिखा दिया है. वन हैज़ अ जेंटल स्लोप एंड वन हैज़ स्टीपर स्लोप. इट इज़ कंसिडर्ड एज एन अ हिल, जिसका बहुत कम होता है, मतलब ऐसा रहेगा तो इसको क्या कहेंगे हम? एंड इफ इट इज़ हायर लाइक दिस देन इज नोन एज mountains. Yes or not? Clear? If the angle
of this limb is less than 30 degree or 15 to 30 degree, it is known as hills. And if it is more than 30 degree, it is known as mountains. Understood? और उसमें height भी considerable होता है, 600 meter height. If it is less than 600 meter height, it is considered as a hills, and more than 600 meter height, it is known as. So, what you are finding here, it is hills. तो hills पर मुझे क्या करना चाहिए ध्यान से, यदि आप rainfall होगा, trees are not there, people are doing agriculture practice, तो trees तो है नहीं. Yes, it cannot hold the water. आप एग्रीकल्चर भी कर रहे होगे, then it can do the lots of soil erosion and landslides. Yes or not? तो यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग. सपोज ये है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ध्यान से ऐसे गड्ढा बना दूँगा. We'll create a basin kind of this, low hills पे, on the low hills. So what happened, यहाँ पर जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा वाटर का कंपैरेटिवली लेस होगा, लेस स्पीड होगी. Yes or not? And if it is less speed, the water will come here and slowly stored into this. So it will reduce the kinetic energy of water. It will accumulate in this region. Here it will again come after filling it slowly, फिर again start coming and then filling the water in this region. Then again it is coming and filling this water in this region. And we can do, listen me carefully, first agriculture in this region. Yes or not? All this region will be what? And it will also recharge underground water. यहाँ से पानी अंदर जाएगा ना, ये आइडिया समझ रहे हैं. लेकिन ध्यान रखना, दिस इज कंसिडर्ड एज कंटोर फार्मिंग. कंटोर फार्मिंग, कंटोर का मतलब होता है स्लोप. लिसन मी केयरफुली. Contour means joining the same slope. Contour means joining the. Contour means, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, जो आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसमें. Contour means what? Contour means joining the. तो ध्यान से देखिए, ये आप देखिएगा, ये स्लोप है. क्लियर है एवरीवन? दिस इज व्हाट? 10 डिग्री एंगल. यस, सपोज यहाँ पे 10 डिग्री एंगल है, यहाँ पे गड्ढा बना दिया हमने. फिर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा 15 डिग्री का स्लोप दिख रहा है. तो मैं इस माउंटेन में उस जगह पे गड्ढा बनाऊंगा जहाँ पे 10 डिग्री का होगा. क्लियर है? जहाँ पे 10 डिग्री का स्लोप होगा, वी हैव टू मेक द ज्वाइनिंग द सेम स्लोप. यदि यहाँ पर मैंने 15 डिग्री का बना दिया तो यहाँ से पानी आया और पानी सारा 15 डिग्री पे आ जाएगा. जहाँ ज़्यादा स्लोप रहेगा पानी सारा वहाँ जाएगा एंड पूरा एक्यूमुलेट होकर तोड़ देगा. यस, फायदा क्या बनाने का? व्हाट इज द नीड टू मेक दिस? हमें एक ही स्लोप को बनाना है. जहाँ जहाँ 10 डिग्री का मिलेगा, जहाँ 15 डिग्री का मिलेगा, वही सेम स्लोप हमें ज्वाइन करना है. सो दैट दे कैन व्हाट? स्टोर द वाटर एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट. सभी में सेम पानी जाए. यदि इस रीजन में मान लीजिए कि 15 डिग्री का स्लोप है यहाँ पर और इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो सारा पानी यहाँ आ जाएगा और इसको तोड़कर तो लैंडस्लाइड हो जाएगा. यस, सॉइल इरोजन इट विल बी. गेटिंग माय पॉइंट? सो द हिली रीजन में व्हाट वी शुड प्रैक्टिस? लो स्लोप, जेंटल स्लोप में क्या फार्मिंग होनी चाहिए? कंटोर फार्मिंग. गेटिंग माय पॉइंट? एंड इन द माउंटेनस रीजन जो स्टीपर स्लोप्स हैं, यहाँ पर क्या हम ऐसे बनाएंगे तो क्या हमारा पानी रोक पाएगा? इट कैन नॉट स्टॉप. यस और नॉट? दिस काइंड ऑफ बेसिन इफ आई एम क्रिएटिंग. सो हियर वी हैव टू डू लाइक व्हाट? स्टेयर. यस, और हमने स्टेयर बनाया और साथ में यहाँ पे बंड कर देंगे. क्या कर देंगे? थोड़ा सा BUND बंड. बांध होता है ना, तो इंग्लिश एंड इज BUND बंड. क्लियर? तो पानी यहाँ पर आया, इसमें स्टोर हुआ.
इसको फिलअप किया, उसके बाद नीचे वाले में आया एंड देन स्टोर किया, एंड देयर आफ्टर इट इज कमिंग ओवर देयर एंड इज स्टोर्ड हियर, यस और नॉट? तो इट इज, आई सेड दैट टेरेस फार्मिंग, विच फार्मिंग? So the mountainous steeper slopes should have terrace farming, and then I said that hilly region, gentle slopes should have what? Contour farming. नहीं तो बहुत बड़ा amount of soil will move down. Then there should be, what I said, that at most of the region the people are doing any kind of agriculture not as per the what? उनके पास measurement करने के लिए नहीं है कि slope कैसे बनाए, ये भी एक problem है. There is a technical assistance also. Clear? चलो स्टेयर्स सब जगह वो लोग कर देते हैं. स्टेयर्स इट इज वेरी विजिबल इन द माउंटेनस रीजन, यू कैन बी एबल टू सी, बट कंटोर इन इंडिया यू कांट बी एबल टू सी. शिवालिक रेंज हैज जेंटल स्लोप्स, यस और नॉट? आप यू कैन, इफ यू आर गोइंग थ्रू योर कार एंड समथिंग बस लाइक दिस, यू कैन फील लाइक इट इज नॉट टू मच माउंटेनस. सो इन दैट रीजन वी शुड हैव, व्हाट आई सेड, दैट कंटोर. लेकिन वहाँ पर यदि नहीं होगा तो लैंडस्लाइड विल आल्सो अकर ओवर देयर. क्लियर है? So good agriculture practice क्या है? On the hills, contour, and on the mountainous slopes, ये छोटी छोटी चीज़ें जानने के बाद कितनी खुशी होती होगी. Yes, we understand that this is contour, this is terrace. तो हर एक जगह little bit science is involved, little bit science, not too much hard science is involved. Clear? तो चार चीज़ें मैंने बताया. फर्स्ट डिफॉरेस्टेशन, सेकेंड वन कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एंड विच वन? बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. इट इज क्लियर? समझ में आ चुका है? सो दीज आर द 4 एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स anthropogenic factors are, first one I said, क्या था? Deforestation. Second one, yes, yeah, development of third, yes, development projects. Fourth, चलिए क्लियर है? What do you think, how many people should visit every year to the Uttarakhand? Huh? Should visit. Why? Various temples are there, we should visit, and then we should take the, what I said, the blessings of those gods. Huh? Tourism. So tourism, that's good. How many, if there is a Wagoner छोड़ दो, क्या एक गाड़ी, Dzire, do you understand? मारुति डिजायर तो एक फेमस गाड़ी है इंडिया में. यस और नॉट? हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन द फ्रंट रो? ड्राइवर और उसके बगल में 2. यस और नॉट? थोड़ा एडजस्ट करके एक और बिठा दिया, 3. इन द फ्रंट 3, बैक साइड में हाउ मेनी सीट? 3. बैक साइड में 3, एडजस्ट करके 2 को और बिठा दिया. अरे छोटा छोटा बच्चा को बिठा लिया. 5, बैक साइड 5, फ्रंट साइड 3. यदि थोड़ा सा और सोचे तो और भी उठाया जा सकता है कहीं ना कहीं. यू कैन थिंक लाइक. एंड एक बार ऐसा होगा, वन मूवी वॉज देयर, हेरा फेरी. एक लोग इधर से बैठ रहे थे, उधर से कुछ गिर रहा है, देखा होगा ये सीन. बहुत हंसी आई होगी इन द हेरा फेरी. इट मीन्स द कार हैज़ कैपेसिटी. Then ecology of mountain and Uttarakhand has also capacity to, what I said, that visit the people over there. Yes or not? क्या उससे ज़्यादा कैपेसिटी से मुझे भेजना चाहिए? लेकिन हमारे भारत में तो मुंह उठाओ. दिल्ली वाले, what happened? They do what? On Saturday and Sunday, the
200 something kilometer or something like this, they are what is 3 hours, 4 hours, 5 hours maximum, and the roads are also becoming better and better. So easily can reach what? Haridwar. Ganga water, taken bath, coming back the next day. Enjoy कर लिया. इस चक्कर में क्या है? Lots of, I said that people are visiting tourism and they want, I said that their hotels and the restaurants should be on the river side. है ना? River side. मजा आएगा that we have to take the selfie. Water should come. इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. Urbanization we are increasing, yes or not? Arey, we should not, by disturbing the ecology of mountain, we should not improve the, what I said, that tourism industry. मैंने यहाँ पे tourism industry नहीं लिखा है. Tourism industry is involved in this deforestation. Yes or not? Why do there is a deforestation at large scale in the Himachal and the Uttarakhand and the Jammu and Kashmir? Because of, I said, that tourism industry is, importantly, it is beyond the ecological capacity of the these Himalayan states. Clear? समझ में आ चुका है? Got an idea? तो इतना बड़ा मैं फैक्टर्स नहीं गिनाऊंगा, मैं सिंपली बोलूँगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल फैक्टर्स एंड. समझ में आ रहा है ना? समझ में आ चुका है? सो दो चार चीज़ें मैं पहले बोल दूँ. What is landslide? Definition पे आ रहा हूँ. It is an, I said that downward pulling of weathered particles of rock. Yes or not? Downward movement of, बोल दे, या downward movement of weathered particles of rock through the medium of air, water, ice. इतना तो बोल सकते हैं ना. What is landslide? What is landslide? What you can say that? अभी definition complete नहीं हुआ. Listen me carefully. I said that it is a downward movement of, I said under the pull of gravity, a downward movement of weathered particles of rock under the pull of gravity through the medium of air, water and ice. Yes or not? Under the influence of natural and where generally shearing force become greater than shearing. समझ में आ रहा है? Yes or not? दोबारा मैं बोलने जा रहा हूँ. I said, दोबारा बोल रहा हूँ. It is in a downward movement of weathered particles of rock under the pull of gravity through the medium of air, water, ice, under the influence of natural and, उसके आगे, in the, where I said, where shear force become greater than shear strength. Yes or not? समझ में आ चुका है? मज़ा आया डेफिनेशन को समझ कर कि क्या है? और ये डेफिनेशन यदि आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा. नहीं तो आप लोगों ने भी अभी मुझे डेफिनेशन दिया और जो शब्द बता रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं अभी समझाऊंगा. देन यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बेटर वे आपको यूज़ करना है. ठीक है? एक चीज़ याद रख लें, हिमालय, बोलेंगे हिमालय, वेस्टर्न घाट. ओनली दिस टू रीजन्स ऑफ इंडिया इज़ अंडर द व्हाट? लैंडस्लाइड प्रोन. क्लियर है? हिमालय एंड वेस्टर्न घाट. क्लियर? बस यही दो रीज़न है. विल हैव टू डिस्कस दैट आल्सो. सो लिखेंगे डेफिनेशन, राइट डाउन द डेफिनेशन. और एक्चुअली में ये बहुत बड़े बड़े मास नीचे मूव करते हैं. यस और नॉट? ये वर्ड आप ध्यान में रखिएगा. लैंडस्लाइड डेफिनेशन इन इंडिया, आपके इंटरव्यू में कभी कुछ भी पूछ दिया जाए, इफ़ anything can be asked, and if you are from the Himalayan states, then there will be high chance to ask these questions. Yes or not? कुछ भी हो सकता है. उनका कोई फिक्स नहीं रहता है कि कौन सा बोर्ड बैठा हुआ क्या है. बस आपको ये देखना है कि सामने वाले को खुश करना है. और ये भी ट्राई करना है कि इंटरव्यू में जाने से पहले जितने भी आपके जो बोर्ड हैं उसमें कुछ मेंबर्स के बारे में आइडिया लगा लें आप. ठीक है ना? जितने मेंबर्स बैठते हैं पूरे एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कौन कौन से मेंबर्स पूछते हैं और उनके क्वेश्चन का क्या आइडिया रहता है, किस रीज़न से, कोई रिलीजन बेसिस पे, कोई फिलॉसफी पे. तो कोई आपको पता चल जाए बंदा ये फिलॉसफी वाला पूछ रहा है तो उसके में हाँ हाँ करके आना है. ठीक है? क्रिटिसाइज मत करना. तो ट्राई करना कि सामने वाले जितने भी इंटरव्यूअर है ट्राई टू मेक देम व्हाट, चाहे किसी भी रीजन से पूछा करें. कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के होते हैं. और एक बात तो है, जो इंटरव्यू में लड़कियों को ज़्यादा मार्क्स मिलता है.
और जो स्मार्ट बॉयज़ होते हैं, एक कहा जाता है, एक होता है ना कि जिम सिंपली आपके सामने कोई स्मार्ट आएगा, यू बिकम सॉफ्ट, यस और नॉट, सम ब्यूटीफुल विद बेटर साड़ी एंड ऑल, देन यू विल बिकम सॉफ्ट. सो योर चांस ऑफ गिविंग, आई सेड दैट मार्क्स ना, आप सिंपली देखो, someone is what I said that giving better answer, somebody who is, I said that well prepared and all, उसको मार्क्स मिलता है. थोड़ा सा इंटरव्यू में आपको ये बायसनेस तो देखने को मिलेगा, ठीक है. तो गर्ल्स को थोड़ा सा वहाँ पे पॉजिटिव साइड्स मिलता है उनका इन कंपेरिजन टू द बॉयज़, एंड देन बॉयज़ भी अपने आप को अच्छा से बना कर जाएँ तो ठीक है, थोड़ा सा स्लिम वगैरह होकर जाए. लेकिन द कंपैरिजन, यदि आपने सेम क्वालिटी के दो बच्चे, एक लड़का है और लड़की, तो लड़की विल गेट, द गर्ल विल गेट मोर मार्क्स इन कंपैरिजन टू द बॉयज़. सो आपको मेंस में उनसे ज़्यादा लाना है. यस, तो आई हैव सो मैनी स्टूडेंट दैट दे हैव गॉट, यू नो दैट आउट ऑफ 275 224. लेकिन एक बात ज़रूर रखना, बहुत जेंटल रहना है और वेरी डाउन टू अर्थ. यदि नहीं आंसर आए तो नो बोल देना फट से, आई डोंट नो, वहीं पे कहानी ख़त्म कर देना है. ये नहीं, और यदि चांस हो बोलने की कुछ आइडिया हो तो आप बोलना सर आई हैव सम एन आइडिया, इफ़ यू अलाउ मी देन आई कैन बी एबल टू शेयर विद यू. कुछ शब्द सीखना होगा. आप दोस्तों में ही बात करते हैं तो ये वर्ड वहीं से सीखें. बोलें इन योर फ्रेंड्स सर्कल्स, यू शुड से समथिंग दैट आई डोंट हैव एन कंप्लीट आइडिया बट सम आइडिया अबाउट, कैन आई शेयर विद यू, शुड आई शेयर. तो आप वो एटीट्यूड वहाँ पे नज़र आएगा. ये नहीं कि डायरेक्टली आप चले जाओगे ना तो भूल भी जाओगे कि हमें शेयर भी, ये वाला बात भी बोल रहा है, क्योंकि वो तो इतना डर रहेगा ना आउटसाइड ऑफ द इंटरव्यू रूम, ठीक है. और बस ये ध्यान में रखना कि आपको 30-40 मिनट बैठा ले और स्माइल करते रहे. और क्या, मैंने तो डफ़र को लोगों को देखा है कल सिलेक्शन में लेते हुए. डफ़र लोग, इट इज़ दे आर इन द सिलेक्शन प्रोसेस. They don't have too much, I said that caliber, and then you can say that metal means knowledge, that kind of it. But even then, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? यस, एक ही चीज़ मैंने बोला है, ये सबसे इजी एग्ज़ाम है. बस आपको दिन रात एक काम कर दो, दिन रात पढ़ो आप, डे एंड नाइट. और एक चीज़ कई बार बोलता हूँ, स्माइलिंग फेस, कई बार बोला वहाँ पे खड़ूस की तरह से. तो so fake smile easily it will be caught. so definition में क्योंकि आप वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें, मैं तो I understand that my wife is much more smarter. When she will go, if she will be able to get the chance, and she has not prepared at all, and as per the age, it is considered to be the last attempt this year. And in the month of Feb itself, she start preparing. अभी start किया prepare करने के लिए, and I am there. So अभी वो ज़्यादा नहीं पढ़ती है, hardly 5 hours 6 hours low है. But I used to say that increase your time, but it should be more productive. And लेकिन इस इंटरव्यू में गई तो वो सबका तोड़ फोड़ कर आएंगे. तोड़ फोड़ के मतलब कि एक होता है ना, तो ऑलरेडी सी इज़ स्मार्ट इनफ, मतलब यू कैन से द स्मार्ट हटा के ब्यूटीफुल डाल सकते हो वहाँ पे. एंड देन स्मार्ट इन द सेंस सी इज़ वेरी गुड इन टॉकिंग विद द अदर एनी वन. हाँ, मैम को वीडियो दिखाऊंगा मैम को जाकर. नहीं, सी नोज एंड सो मैनी कलीग्स ऑफ माइंड इट सेल्फ से दैट कि यदि मैडम आप तैयारी करते हैं ना तो आप क्लियर कर जाओगे. तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि बेसिक इंटेलेक्ट होता है. एंड आई हैव सीन दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, ऑल ऑफ यू, जब से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ऑल ऑफ यू कैन क्लियर. बस एक है ना, कोई पुश करने वाला आपको रहे, मेरे जैसा टीचर रहे, और कोई नहीं रहूं तब भी आप मेरे से फ़ोन करके बात करके कुछ बोल सकते हो. तो यदि अलाउ करोगे तो डांट भी दूंगा फ़ोन पे. तो दैट आई कैन डू, एंड अकॉर्डिंगली मूव करो. सिलेक्शन इज़ इन योर हैंड. बहुत इजी एग्ज़ाम है, क्लियर है. मैंने अपने लाइफ में यही समझा, IIT आप नहीं क्लियर कर सकते हैं, नीट एग्जामिनेशन, डॉक्टरी, MBA, इट विल बी हार्ड इनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बट IAS
कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत वाइड स्प्रेड और कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत होती है एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और जो नॉलेज ले रहे हैं उसके लिए बेसिक चीज़ें क्लियर। अभी जैसे मैंने हर एक का एक डेफिनेशन अलग देता हूँ, हर एक चीज़ को अच्छे से समझाता हूँ, वही आपको करना है। अच्छा ये समझो कि आप जब किसी यहाँ पर क्लास में जब पहली बार आए होंगे तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आप, इफ़ यू आर इन द दिस मार्केट इटसेल्फ, then what will happen, you will take to get an idea which road is this, how to go, which cave I have to enter in, yes or not? So but slowly and slowly start observing, okay, this is this, this is this, this is this, yes or not? And then without any obstruction in your mind you are able to come over here easily. Is it clear? It means if you are revising anything, slowly and slowly you start understanding here and there and nearby. सो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, कई चीज़ आप मुझसे पढ़े हो, तो उसमें आपको कभी कभी दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन व्हेन यू विल स्टडी फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, व्हेन यू स्टडी फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, देन ऑटोमेटिकली सो मेनी थिंग्स विल बी क्लियर्ड। इज इट क्लियर? आप उसके कई आइडियाज़ को अलग से देखने लग जाएंगे। क्लियर? तो डेफिनेशन लिखवा दिया मैंने कि नहीं लिखवाया? अभी नहीं लिखवाया? चलिए लिख लेंगे डेफिनेशन। तो अब थोड़ा सा आपको बूस्टअप मिला है कि मैं क्लियर कर सकता हूँ। कई लोग जब अपने आप को लो फील करते हैं कि नहीं मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, तो यहीं पे सबसे बड़ा वीकनेस होता है कि आई कांट क्लियर दिस एग्जामिनेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू कैन क्लियर, यू गिव योर 100%। क्लियर? सो राइट डाउन। क्या बोला मैंने? हाँ, कुछ इसमें कुछ भी नहीं बोला मैंने। तो हमने क्या बोला था? इट इज़ क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ, इट इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वेदर्ड पार्टिकल्स ऑफ रॉक under the pull of gravity, under the pull of gravity, through the medium of air, water, yes, ice, through the medium of air, water, ice, under the influence of, yes, under the influence of natural and anthropological factor, under the influence of natural and anthropological factor, where under the influence of natural factor and anthropological factor, where shear force of the rock particles become more than shear strength. क्लियर? अच्छा ये मुझे बताओ, सैचुरेशन समझ में आ गया? सैचुरेशन मेक्स इट लुब्रिकेंसी। अच्छा कभी आपने देखा होगा कि यदि आप थोड़ा सा, देयर इज इन अ फ्लोर, आटा फ्लोर इट इज देयर, and if you are sprinkling the water over there, then suddenly they will be able to get the some particles of floor, yes or not? और टाइटली होल्ड, थोड़ा सा और कम पानी डालें, इट विल टाइटली होल्ड, लेकिन यदि इसको सैचुरेट कर देते पिघल के फैल जाएगा, yes or not? देखा होगा ना आपने? एंड ड्यूरिंग द रेनफॉल स्मॉल वाटर इज फॉलिंग डाउन, देन विल बी स्मॉल सॉइल विल गेट बिकम टुगेदर। तो यदि आप सैचुरेट कर दोगे सॉइल को तो वो इजी हो जाता है लैंडस्लाइड की ओर, यस और नॉट? इसकी होल्डिंग कैपेसिटी, लुब्रिकेंसी बढ़ जाती है, होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, यस। तो आपने देखा कि नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अर्थक्वेक, हैवी रेनफॉल, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, फिजियोग्राफी मीन्स स्टिफनेस, यस और नॉट? Lithology, that I said that soft and hard rocks. Geology, yes, cracks, joints, etc. Yes or not? तो इस पे डिपेंड करता है सारा चीज़। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं कोई चीज़ डेफिनेशन नहीं देने जाऊँगा, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, दैट इज़ नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट।
बस यही बोलूँगा, अर्थक्वेक होगा तो व्हाट विल हैपन ड्यू टू द अर्थक्वेक ट्रेमर and then weathered particles of rock, their shear strength will decrease and shear force will, and the landslide will occur. Yes or not? Heavy rainfall due to the saturation of water, due to the saturation of water, due to the saturation of water, clear hai? What will happen? There will be increase in lubricancy, means in decrease in shear strength and increase in shear force. Clear? Are you clear? Thereafter, and it can be in the form of, I said that is a deforestation होगा, तो यही heavy rainfall convert into debris flow and mud flow. Is it clear? And flood water जो करता है वो जो है आपको जो रिवर को जो ऐसे रिवर को आप देखोगे तो बाहर काटता है ऐसे, रिवर इज कटिंग इन, दिस इज अ रिवर वाटर सपोज, तो आउटर बैंक को काटता है और यहाँ से ये जो गिरता है इसको स्लम्प कहते हैं, SLUMP, slump. Understood? Like if I said that the river is going like this, flood water, and then cutting the outer bank, fast speed is moving. Yes or not? और वहाँ पे देखा होगा मिट्टी bank of the river is falling down. So that is known as slump. It is also landslide. It is clear? So flood क्यों landslide करता है? It is in the form of, I said that slump रहेगा. Yes or not? Slump means outer cutting of the, means I said that cutting or erosion of the outer bank of the river. Erosion of clear? Slump. Clear? लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग आप क्लास के बाद पूछ सकते हो तो आई कैन टेल यू, या हो सकता है मैं फ्लो में कुछ चीज़ें बता दूँ तो बता दूँ. क्लियर है? फ्लड, volcanic eruption. What the volcanic eruption? It is a trembling and shear strength will decrease and shear force will, India में तो होगा नहीं, possibility is there in the Andaman Nicobar. So India has very less chance of this. India has earthquake, whole Himalayas, seismic zone 4, seismic zone 5, heavy rainfall, Himalayas heavy rainfall, and then flood. These three things are there. Yes or not? Another point I said that physiography, Himalaya has steeper slopes. याद है ना आपको? And ये या आपने लिख लिया है ना सारा कुछ? Which Himalaya I said that this is your what? Eastern Himalayas, yes, and in the Jammu and Kashmir and all it is what? Western Himalaya, and this is your Himalaya. And I am discussing the what I said that earthquake disaster. I said that what happened here is a slime setting of the door phenomena. याद है ना? It is, I said that this is the Indian Gondwana plate. First it is strike and the rest it is collided like slime setting on the door phenomena, and because of that the eastern Himalaya is higher and then peaks are higher, then it will be more steeper. Yes or not? Clear है? So लिखेंगे comparison between eastern Himalaya and western Himalaya naturally. Comparison between eastern Himalaya and naturally. First point, can I say that this eastern Himalaya is steeper than western Himalaya? Write down first point. Eastern Himalaya is steeper than Eastern Himalaya is steeper than Western Himalaya. Yes? Next point, this is the reason which receives, I said that 200 plus centimeter